लाइट करो नहीं पता बारा का नाम दे कर ले ये लाइट तो आई है था ये बात Ay, gangmora, gangmora, gangmo. कसी जाओ बाल लगा वाला। हेलो उमरा खले? कितनी बार क्या होगा? कसी जाओ। एक बार की दूसरे उमरा खले? ए उमरा है। अरे ऊपर आ जाओ उधर कोई। बैटरी रख दे। बैटरी अभी शादी नहीं करा तो तुम बता कसी जाओ जी। उमरा ले। बाहर है। चल पूछ लो बाल लगा। लाइट करो उमरा। चलो 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 अरे उन्हें तो बिया ना कम मरी जो हमरा पास में पता है बस ले दो नहीं आता लाइट में आगा था उभारो तो हमें तार शांति राखो थोड़ी शूटिंग चालू है सरकार मोकलावण होता बात ना कर सका घबराई जाए वटने कोई दोस्तों धनसुरा तालुका वहाँ बूटाल गाँव जहाँ શું નામ છે આપણું ઘરવાળા માલિકનું रसिकભાઈ सनाभाई नाडिया जहाँ रसिकभाई सनाभाई नाडिया उनके घर में एक खतरनाक कोबरा जो बिग साइज़ में है वो घुसा हुआ था। तो अभी हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। तो दोस्तों ये सांप जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में नाग देवता बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में कोबरा और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में फेड़िया भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो नाग, इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। अगर किसी बंदे को ये काट लेता है तो 1 या 1.5 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। अगर हम सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो इंसान को बचाया जा सकता है। अगर झाड़ फूक या बुआ दत्ती उसमें हम रहे तो अक्सर इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों अभी इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। तो इसको ले जाके कल सुबह जंगल में सही सलामती इसको हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसे जो सांप, ऐसे जो प्रकृति के जीव है, उसको बचाने का काम हमारा जो अभियान है तो दोस्तों ऐसे जो प्रकृति के जीव है, जो पर्यावरण के मित्र भी है, तो अक्सर ये पब्लिक जो ये सांपों को देख के मार डालती है। तो दोस्तों सांप इतने खतरनाक नहीं होते जितना हम लोग मानते हैं। तो दोस्तों अभी इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। तो इसको हम ले जाके जंगल में छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। आओ भाई हमरा डब्बू आओ ए ने चबे ना कम मरी जो ऊपर है नो चढ़ी છે मार पड़े डब्बू लाय ले आदन भाई वो कंट्रोल लेना ले ले हम आ जब बस दे मारे ना इधर बस દબાના કૂચા નીકાળે પેલા શાંતિ રાખો। આના વિશે તમે મારો જેટલું ખતરનાક હોતું નહીં। તમે એની નજીક જાઓ અને એનો તમારી ઉપર એનો તમારો પગ એની ઉપર પડે અને લાગે બીક લાગે તમારાથી તો જ એના ઉપર અને એક કોણો પાડવા માટે યંત્ર બેંત્ર હોય તો લેતા હો હેડો શ્વાસ લેવો પડે ને વાત સાચી છે મળી જાય ને કોણો ઓલ પાવર કોક લાઈ લે। तो दोस्तों इसको हमने अभी रेस्क्यू कर लिया है। तो इसको हम ले जाके जंगल में कल छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। હવે દાદા
સાપ બધાને બીક લાગે છે સાપના નામથી. આનાથી બીવાની કોઈ જરૂર નથી. આ સાપ કોઈ દિવસ એમને એમ કરતો નથી. તમારો પગ ના પડે, દબાણ ના થાય તો સુધી ના કહે. એવું નથી કે હું પકડવા આવ્યો એટલે મારામાં મંત્ર બોલું છું કે તંત્ર બોલું છું. એ બધું ભૂલી જવાનું તો કોણ જ નહીં. બરાબર છે. એટલે એવું કશું નહીં, ખાલી આ એક ટેકનિક છે. તમને બધાને બીક લાગે છે એટલે તમે આનાથી દૂર ભાગો છો. અમારી બીક મટી ગઈ છે. કેમ? કારણ કે અમે સાપને બચાવવાનું કામ કરીએ છીએ. એટલે સાપને બચાવવાનું અમે કામ કરીએ છીએ એટલે અમારે પકડવાના અમારી આવડત છે. તો એ હવે એવું નથી કે અમે જ કરી શકીએ. આમાંથી કોઈ પણ આ કામ કરી શકે, પણ ખાલી સાપો વિશે જાણવું પડે. અને અહીંયા બધા મસ્ત મજાના મોબાઈલ લઈને ઊભા છે, બધા ટીવી પિક્ચરો જોતા હશે, પણ એમ નહીં કે સાપની એમની માહિતી તમે થોડી ઘણી સાંભળો તો જુઓ ને તો ઓટોમેટિક તમને ખબર પડે. સાપ એ પર્યાવરણનો મિત્ર છે. કારણ કે ખેતીવાડી, જો ખેતીવાડીમાં જો આ સાપ ના હોય ને તો તમારા ઘરમાં એક કણે ના આવે. કેમ? કારણ કે ઉંદરનું એક કપલ છે ને વર્ષના 900 બચ્ચો પેદા કરે, 800 થી 900. જો ઉંદરોનો બધો જો બચ્ચો જીવ તો પછી તમારા ભાગમાં કે કણ આવે. બરાબર. એટલે આ કુદરતે ઉંદરોનો નાશ કરવા માટે સાપની રચના કરેલી છે. એટલે આહાર શૃંખલાની મુખ્ય ધારામાં આ પહેલો નંબર છે. ભાઈ સાપને જુઓ તમે કે ભાઈ સાપ જુઓ તમે કે સાપ જઈ રહ્યો છે તો એને ભગાડી મૂકવાનો, થોડું ખખડાઈને એને મારવા માટેની કોશિશ નહીં કરવાની. તમે એની પાછળ લાકડી લઈને પડ્યા, એને મારવાની કોશિશ કરી તો એ તમારી પર એના બચાવ માટે કુદરતે એને આપેલી છે સિસ્ટમ. આપણે લોકો કેવું બચવા માટે બંદૂક તલવાર ધારિયા બનાવ્યા છે, એ કુદરતે એને આપેલું. કોઈક તમે મારવા આવે ને તો ડંખ મારજે. એ ત્યાં સુધી તમે એને હેરાન નહીં કરો ત્યાં સુધી એ યંત્ર હશે તો ચાલશે. એને ભગાડી મૂકવાનું. ઘરમાં આવ્યું હોય તો અમારે જે હોય બચાવવાળા એમને બોલાવવાના, પણ મારવાનું નહીં. એ ઝેરીમાં કે બિન ઝેરી વાઘ હોય તમને જો ખાઈ જાય, સાપ છે એ તમને નહીં ખાઈ જાય. સીધી વસ્તુ છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. એ તમારી પાછળ નહીં, યાદ રાખીને નહીં બે કે આ ભાઈના ઘરમાં હું કાલે ગયો હતો તો આજે પાછો જવું. दोस्तों ये जो बूटाल गांव जो थोड़े बहुत सांपों के बारे में अभी जागृति उनके अंदर थोड़ी बहुत आई है, तो ये सांपों को मारते नहीं. तो हम सांपों को बचाने का और पर्यावरण को बचाने का जो हम एक काम कर रहे हैं, तो इसमें ये पूरे गांव ने हमें सहयोग किया है. क्योंकि एक सांप को ये गांव वालों ने एक जीवत दान दिया है. तो दान में अगर जीवत दान कोई देता है तो वो अक्सर महान होता है. तो ये लोगों ने जो बूटाल गांव वासी है उन्होंने एक नाग देवता, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में नाग देवता बोलते हैं, उनको जीवत दान दिया है. तो ये जो पूरा गांव है उनके हम भी आभारी है. और ये नाग देवता जो अक्सर हमारे गुजरात में इसको देव माना जाता है, तो ये जो पूरे बूटाल गांव, तो इनका नाग देवता का आशीर्वाद उनके सदा इनके सर पे रहे, हमारी ऐसी कामना है. तो हमें रेस्क्यू करके अभी ले जाके उसको कल जंगल में छोड़ देंगे. बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ. जय हिंद, जय भारत. कल रात बूटाल गांव जो धनसुरा तालुका का एक गांव है, जहाँ एक कोबरा दीवार के अंदर घुसा हुआ था, तो हम रेस्क्यू करके लाए हैं. और ये जो प्रकृति है, फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, वहाँ इसको हम छोड़ने के लिए आए हैं. तो इसको हम अभी रिलीज़ कर रहे हैं. तो बहुत बड़ी साइज़ में कोबरा है. तो देख रहे हो आप, ये जो नागराज है वो चलते हुए अपने जंगल में जा रहे हैं. तो दोस्तों इसको हमने रिलीज़ कर दिया है. वो अपने नेचर में अभी जा रहा है. तो इसकी जो अभी नेचर में जा रहा है तो उसका जो अंदाज़ है, तो दोस्तों इसको हमने अभी नेचर में छोड़ा है. दोस्तों ऐसे जो रेप्टाइल है, ऐसे जो जीव है, जो प्रकृति के जीव, जो प्रकृति में अच्छे लगते हैं, अभी भी ये घूम रहा है हमारे पीछे ही है. तो दोस्तों ये प्रकृति के जीव कभी कभार जंगल को छोड़ के कभी कभार हमारे घर के आगे पीछे खुराक
या भोजन की तलाश में हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये सांप जो प्रकृति के जीव है वो आ जाते हैं कभी कभार ऐसे प्रकृति से बाहर निकल के घरों के आगे पीछे। तो ये बहुत ही शानदार कोबरा जो तो दोस्तों चला गया है अंदर, जो उसका ठिकाना है वहाँ। तो कभी कभार ऐसे जीव हमारे घर के आगे पीछे आ जाते हैं। तो इंसान ये सांपों को देख के अक्सर डर जाया करते हैं और इसको मार देते हैं। ऐसे किसी को काटने के लिए, किसी को मारने के लिए हमारे घर तक नहीं पहुंचते, लेकिन भोजन की तलाश में पहुंच जाते हैं। लेकिन इंसानी सोच बरसों से एक ही है कि सांप अगर देखते हैं तो मार डालो, क्योंकि सांप अक्सर खतरनाक होता है, काट लेता है तो इंसान मर जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहले का जो ज़माना था, जब ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो एक गांव से दूसरे गांव लोगों को चल के जाना पड़ता था। अगर अक्सर ऐसे में कोई सांप काट लेता था तो इंसान सही में मर जाता था। क्योंकि तो अभी इतना विकास हो चुका है, तो अभी सांप अगर किसी को काट लेता है तो कोई इंसान मरता नहीं। क्योंकि सरकारी अस्पताल जहां एंटी वेनम जो मुफ्त में मिलता है, इन्हीं सांपों के जहर से वो बनता है। तो अक्सर सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो इंसान को बचाया जा सकता है। तो ऐसे सांप किसी को बिना वजह काटते नहीं है। अगर किसी का पैर उस सांप के ऊपर पड़ता है, वही ये सांप काट लेते हैं। बिना वजह कोई सांप काटता नहीं है। तो ये प्रकृति के जीव को हम यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, और पकड़ते टाइम और ये छोड़ते टाइम हमें बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि ऐसे जो रेप्टाइल है उनका जीव हम ये बचाते हैं। और जो अभी इंसान है वो भी बहुत जागरूक हो चुके हैं, ऐसे सांपों को कोई मारता नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग जो ये पर्यावरण के जो बचाने का, नेचर को बचाने का जो अभियान है हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। अगर और कोई अभी तक नहीं जुड़ा तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकता है। तो ये हमारा अभियान जो आपको पसंद आता है, ये प्रकृति का जो हमारा जो अभियान है उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। और आपको भी अगर ऐसा जो प्रकृति का काम हम कर रहे हैं वो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।